हम लोग खास करके एक्सकर्शन टूर के लिए आए हैं बच्चे के साथ और यह एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। Good morning. My name is Ansu Kumari, standard of class 8. We are from Panorama Public School that is situated in Supaul district in Chhatapur, Rampur Chhatapur, Supaul, and that is a rural area. Good morning everyone. My name is Rimi Hazari. I am standard class 8. I am from Daharia. We are coming here to learn something and see many environment. We are studying in Panorama Public School, Chhatapur, Supaul. Hello, I am from Panorama Public School. My name is Divyansh from Standard 8. Panorama Public School is the biggest school from our area. It provides the best studies from the nursery class to 8th, 9th standard actually. And our school has a lot of students and a lot of teachers as of 25 to 30. They all are well-trained teachers. They talk in English. We all talk in English in our school. That's all. Thank you. I am Mahesh Jha, a teacher of Panorama Public School, Rampur, Chhatapur, faculty Social Science. Now, we all of us enjoying very much with our students because it is an educational tour, and being a teacher, I want to give the knowledge about the nature and various other things. Today, a lot of enjoying our students with their teachers. There are various teachers, various faculties, and all of we want to give the knowledge of nature and various other things to our students. Thank you. Good morning. My name is Shobna Braik, and right now I'm working in Panorama Public School, and I have come from we have come with our students from Chhatapur Panorama Public Schools, and this is a school tour that has been organized on this day. We are taking the students for some kind of like taking them around to show the city, and it is by purposely it is an educational tour. So we came with all the teachers and along with the hostelers, and we have taken students mainly from the upper sections like from 6 to class 9, and we have also welcomed our hostelers who can come and visit this beautiful place and would know this place properly. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम आस्था सुमन है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं यहाँ आज कुशियार गांव जैविक पार्क में भ्रमण के लिए आई हूँ, और हम यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। मेरे विद्यालय का नाम पनोरमा पब्लिक स्कूल है। वहाँ के सभी शिक्षक बहुत ही क्वालिफाइड हैं और वेल क्वालिफाइड हैं, और हम सभी यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।
सभी लोग देख सकते हैं अभी हम लोग कुशियार पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बारिश होने की वजह से हम लोग सभी अभी इस भवन के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग अभी अपने आप में मज़े कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो सभी लोग बहुत खुश हैं और बारिश बंद होने के बाद हम लोग फिर से भ्रमण करेंगे और जानकारी अर्जित करेंगे। Hello everyone, myself Nancy Mehta. I am from class 7 and I am from Panorama Public School, Chhatapur, Rampur. Its district is Supaul, and we are here coming to see how is the biological park is amazing. मेरा नाम अश्मिता आनंद है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं पनोरमा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हम लोग सब अभी घूमने के लिए आए हैं। अभी बारिश हो रहा है फिर भी हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। हम लोग पनोरमा पब्लिक स्कूल से आए हैं। हम लोग यहाँ पे पार्क में बच्चों को एजुकेशनल टूर के लिए आए हैं, बट यहाँ सडनली बारिश हो गई है। बारिश होने की वजह से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं पार्क में। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर बारिश थम जाए तो हम लोग बच्चों को थोड़ा एजुकेशनल टूर करा दें, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बता दें, साइंस से कुछ रिलेटेड बता दें। जैसे ही अचानक हम लोग कुशियार गाँव पहुँचे, गेट पर हम लोगों का अच्छा सा इंट्रोडक्शन हुआ। हमारे टीचर, हमारे बच्चे जैसे ही यहाँ पहुँचे बादल लग गई और बादल के साथ हम लोग ऐसे ही आनंद मनाते हुए भीतर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ साथ ही वर्षा की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। थोड़ी देर तक तो हम लोग बच्चे के साथ बाहर में रहे, काफ़ी ही आनंद लिया। बच्चे सब काफ़ी खुश नज़र आए। वातावरण भी काफ़ी आनंददायक है, ठंडा है। जो हम लोग सोचते थे कि बच्चे सब गर्मी में कहाँ क्या करेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा कि, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ देर में ही अनायास बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होते ही हम लोग बच्चे के साथ पार्क के अंदर एक बना हुआ रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में हम लोग आ गए बच्चे के साथ। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इस पार्क में कितने ही अच्छे ढंग से आनंद मना रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। जबकि पानी हो रही, अभी भी वर्षा हो रही है। लग रहा है कि मौसम तो काफ़ी सुहाना हो चुका है। वर्षा अब करीब करीब बंद होने को है और जैसे ही वर्षा समाप्त होगी हम बच्चे के साथ फिर एक बार निकलेंगे। और इस सुहाने मौसम का वास्तव में जो एक मज़ा होता है अपने शिक्षकों के साथ, शिक्षक मित्रों के साथ हम लोग ले रहे हैं। और फिलहाल लग रहा है कि और अच्छा वातावरण बनेगा, हम लोग अच्छी तरह से बच्चे के साथ आनंद ले पाएंगे। ओके, वी आर केम फ्रॉम पनोरमा पब्लिक स्कूल जो कि छातापुर गांव के एक छोटे से गांव छातापुर जो कि रामपुर के डिस्ट्रिक्ट सुपौल डिस्ट्रिक्ट पे है, छातापुर गांव पे रहते हैं। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ और स्कूल बहुत ही अच्छा है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल्स के। एंड ऑल्सो संजीव मिश्रा जी जो कि एक छोटे से गांव छातापुर में उन्होंने इतना बड़ा स्कूल बनाया पनोरमा पब्लिक स्कूल, जिसके द्वारा वहाँ के गांव के बच्चे लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छी बेहतरीन जगह मिल रही है स्कूल में पढ़ने की। जैसे कि मैंने आपको कहा था, संजीव मिश्रा जी जो कि एक छोटे से गांव छातापुर पे जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कूल पनोरमा पब्लिक स्कूल बनाया है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों की हॉस्टल फैसिलिटीज़, शिक्षा और उसके साथ साथ उनके जो खेल प्रतियोगिता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ साइंस से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जान रहे। जिस तरीके से बच्चे लोगों को यहाँ पे घुमाया जा रहा है, सारे लड़के लड़कियाँ 5 to 9 के बच्चे लोग आए हुए हैं और जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसके साथ मैं संजीव मिश्रा जी को बहुत ही शुक्रगुजार कहती हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ जो कि एक इंग्लिश टीचर है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि बच्चों लोगों की खुशी और हमारी खुशी। थैंक यू सो मच।
आज से मुझे याद है कि लगभग 20 वर्ष या 25 वर्ष पहले की बात है, जब इस होकर हम गुजरते थे तो ये बंजर जैसा दिखता था। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सहारा इंडिया का ही एरिया है। सहारा इंडिया इस ज़मीन को ख़रीदा था, अब किसके अधीन में है ये तो पता नहीं। ये जंगल जैसे दिखता था। इसके ऊपर से चिड़ियाँ जब उड़ती थी तो चिड़ियाँ तक भी मरने के कंडीशन में होता था। बालू का, शायद बालू ही बालू है यहाँ, हाँ। और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हुआ करता था, डेजर्ट जैसे दिखता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कितना सुहाना मौसम है, कितना सुहाना जंगल है। ये सखुआ का देखते हैं, यहाँ अगल बगल में सखुआ के पेड़ हैं और बहुत सारे भी पेड़ हैं। जिस तरह से इसका नाम बायोडाइवर्सिटी पार्क जैसे कुछ रखा गया है, कंप्लीट नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बॉटनिकल गार्डन हम इसको कह सकते हैं। प्लांट, बहुत सारे किस्म किस्म के प्लांट हैं। बच्चे के लिए खास करके बहुत ही अच्छा रहेगा ये। और मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी अभी जाता हूँ, बच्चे के साथ इंटरेक्शन करूँगा और पेड़ पौधे को उखाड़ के ये दिखाऊँगा कि किस तरह से इसके बारे में स्टडी किया जा सकता है। हम इसके विषय में एक वीडियो भी बनाए हैं, रियली हम एक वीडियो भी बनाए हैं। बच्चे को पढ़ाने के क्रम में बच्चे को उखाड़ कर, पौधे को उखाड़ कर बच्चे को हम दिखाए हैं किस तरह से ये प्लांट का ये पोर्शन ऐसा होता है, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, प्लांट के इतने पार्ट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी स्कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी हम एक रूरल एरिया के स्कूल से आए हैं, रामपुर एक रूरल एरिया का स्कूल है, वहाँ भी कभी हम याद करते हैं कि वो भी एक डेजर्ट एरिया ही था, कि उसके नज़दीक से सड़क गई है। सड़क पर से जब हम गुजरते थे तो इतना धूप लगता था कि बर्दाश्त नहीं करते थे। आज उस जगह रामपुर में संजीव बाबू के करामात से, उनकी कार्यकुशलता से, उनकी शिक्षा प्रेम के कारण एक ऐसी इमारत खड़ी हुई है जो मैं समझता हूँ कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में वैसा कोई न बिल्डिंग है और न स्कूलिंग के लिए वैसा कोई साधन तत्काल नज़र आ रहा है। जिस तरह से रामपुर छातापुर में हम लोग संजीव बाबू के कृपा से स्कूल को फ्लोरिश कर रहे हैं, और लग रहा है कि जिस तरह से संजीव बाबू का स्कूल के प्रति एक लगाव है, कि मैं समझता हूँ कि 7 दिन या 15 दिन के दरमियान में वो वहाँ पहुँचते हैं, स्कूल को देखते हैं, और उनकी जिगरी तमन्ना है, लालसा है कि उस स्कूल को हम ऐसे स्कूल में बदलें कि आज के बच्चे जिस तरह से इस लोकल एरिया से बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या कहीं शिक्षा की खोज में जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस जगह को यदि हम एक शिक्षा का केंद्र बना दें तो कल के दिन में इस देहात से, इस रूरल एरिया से, इस बंजर भूमि के संतान को उतना दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और यहीं यदि एजुकेशनल हब बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के सारे बच्चे यहीं पठन पाठन करेंगे, जो कि हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा उपलब्धि मूलक गहना होगा। इसके लिए संजीव बाबू को हम लोग उस क्षेत्र के सभी कोई दिल से धन्यवाद देते हैं। उतना ही नहीं, उनका शिक्षा प्रेम इतना भी देखा गया है, हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि मेडिकल के लिए भी, मेडिकल कॉलेज के लिए भी वो ज़मीन एक्वायर कर लिए हैं, क्योंकि 65 बीघा ज़मीन वो एक्वायर कर लिए हैं। और उस 65 बीघा ज़मीन में वो मेडिकल की कल्पना कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हो। यदि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में यदि रामपुर में एक मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो युवक बेरोजगार हैं उसके लिए रोज़गार भी होगा, और एक बहुत बड़ी संपत्ति हमारे क्षेत्र को मिलेगी। और हमारे क्षेत्र को यदि संपत्ति मिलेगी तो संजीव बाबू के साथ साथ उस क्षेत्र की भी पहचान बनेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेडिकल कॉलेज के लिए बनना शुरू हो गया है, जिसमें 2 बिल्डिंग बन चुका है, तीसरी बिल्डिंग 4 मंजिली इमारत कंप्लीट होने के कगार में है। और मैं समझता हूं कि 2022 के बाद
23 और 24 में हम लोग मेडिकल कॉलेज की जो परिकल्पना किए हैं वो भी हम लेकर चलेंगे। दूसरी बात, अभी जिस तरह से 2 या 3 वर्ष हमारे स्कूल को हुआ है, इस 2-3 वर्ष के दरमियान में हमारे पास जिस तरह से बच्चे की संख्या बढ़ रही है, करीब करीब 700 प्लस से कम नहीं होगा, 700 से ऊपर ही है हमारे पास बच्चे। और 23 से हम +2 की सुविधा भी देने के लिए जा रहे हैं और 23 और 24 से मेडिकल की फैसिलिटी भी हम देने के लिए जा रहे हैं। साथ साथ एजुकेशनल हब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बड़े बड़े विद्वानों से भी संपर्क करते हैं इसके लिए और उनकी सलाह को हम हृदय से आत्मसात करते हैं कि यदि वो हमें सलाह देते हैं, हम सलाह लेते हैं और उस सलाह को बखूबी इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं और एक अच्छा एजुकेशनल सेंटर का जो कुछ फैसिलिटी होता है हम जो दे सकते हैं उसको देने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग कुशियार गांव आए, बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाई से थोड़ा हटके था, वो लोग को थोड़ा इन्वायरमेंट में भी मज़ा आया और
आज का वेदर भी उस हिसाब से था जिस हिसाब से वो लोग को। साइंस से रिलेटेड भी थोड़े बहुत कुछ, बायो से रिलेटेड हो गए। बस यही हमारा मोटो था स्टूडेंट्स को प्लांट्स और नेचर से थोड़ा इंटरेक्ट कराना। थैंक यू। Welcome. Today I am going to introduce Panorama Scholars. Today we have come here to show our parents that we are studying very well in our school. This is our school. We can see here there is a staff room and many rooms, class, washroom, many activities done here. We are very well in our study, so we are here for study very well. ये हमारा एक्टिविटी रूम है, इसमें हम बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये डाइनिंग हॉल है जहाँ हम खाना खाना खा सकते हैं। और ये नर्सरी क्लास है, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ये ऊपर के रूम होंगे। ये कंप्यूटर लैब है, इसमें हम जाके कंप्यूटर सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और ये म्यूज़िक रूम है, इसमें हम म्यूज़िक, डांस वगैरह सीखते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेडिकल रूम है, यहाँ पर अगर कोई भी इंजर्ड होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट चलता है। और फाइनली हम लोग हमारे क्लासरूम में आ चुके हैं और ये हमारे क्लासमेट्स हैं। आज हम लोग पनोरमा स्कॉलर्स घूमने आए हैं। हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर के 10th तक के, अभी 9th तक के स्टूडेंट्स हैं और 12th तक हमारे स्कूल में क्लास की व्यवस्था है। हम सभी यहाँ के क्लास में लगभग 20 to 25 स्टूडेंट्स हैं। मैं वंश मनी आर्या स्टैंडर्ड 9th का हूँ। मैं पहले पनोरमा स्कॉलर्स हॉस्टल में रहता था, लेकिन मेरा घर नज़दीक होने के कारण मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ पनोरमा पब्लिक स्कूल छातापुर रामपुर। वहाँ पे ऐसा फैसिलिटी मिलता है जहाँ पनोरमा स्कॉलर्स में मिलता था। वहाँ पे पढ़ाई के साथ फैसिलिटी सब अच्छा मिलता है। All the things that we see and feel are matter. Matter is defined as anything that occupied space and has mass. My name is Reshmi. I study in class 9. I study in Panorama Public School, Chhatapur, Rampur, Supol. Thank you. Particles in solid are packed close. There is very little space between the woods. Paper, glass and metals are example of things that are solid. Solid cannot be compromised.
अब हम आ चुके हैं पूर्णिया के बीचों बीच स्थित पनोरमा के ई होम्स में। ऐसा मतलब घर बनाया जा रहा है जो पूरा ऑटोमेशन वाला है। इसमें मेन रोड से लेके सारा चीज़ सेंसर वाला है। आपका मेन रोड भी है जो वो पिन से ओपन हो सकता है। लाइट वगैरह जो है सेंसर वाला दिया हुआ है, जो जहाँ भी जाएंगे हम ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा, और जब हम मूव करना बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। थैंक यू। ये 5 BHK विला है। इसमें हम जो है ना 2400 स्क्वायर फीट लैंड एरिया दे रहे हैं और सुपर बिल्डअप एरिया 4874 स्क्वायर फीट है। ठीक है, इसमें हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मेन डोर से लेके सारा कुछ आपका ऑटोमेशन वाला है। जैसे मेन डोर पे हम आपको पिन में थंब है, पिन है आपका, फिर सेंसर वाला है सारा कुछ, और वीडियो डोरबेल भी हम आपका दे रहे हैं मेन डोर पे। ठीक है, बाकी ये आपका ओपन किचन है। किचन का भी साइज़ देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पेसियस है। इसमें क्या है ना, हम लिविंग अलग दे रहे हैं, डाइनिंग अलग दे रहे हैं। ये आपका लिविंग का प्लेस हो गया। फिर लिविंग से अटैच आपका कॉमन वॉशरूम है। फिर आपका ये हम टीवी कैबिनेट भी बनाकर दे रहे हैं। एक बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे जो काफ़ी स्पेसियस है। इसके साथ हम अटैच वॉशरूम भी दे रहे हैं। इसमें भी आपका बेडरूम से अटैच हम वार्डरोब दे रहे हैं, जिसमें भी आपका पिन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। पिन थंब से आप ओपन कर सकते हैं वार्डरोब। ये आपका स्टेयर है। स्टेयर का भी आप साइज देख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है, कंजस्टेड नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे फिर हम 2 बेडरूम दे रहे हैं, जिसमें एक ये मास्टर बेडरूम है।
मास्टर बेडरूम के साथ क्या है ना कि हम ड्रेसिंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। इसमें आपका जो वार्डरोब बनेगा वो बेडरूम में नहीं बन के आपको ड्रेसिंग रूम में बनेगा, फिर अटैच आपको वॉशरूम है। और बेडरूम से अटैच आपका बालकनी है। ये आपका लिविंग एरिया हो गया। हम फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एक लिविंग एरिया दे रहे हैं जिसके साथ आपका अटैच बालकनी का प्लेस है। आपका ये बालकनी का प्लेस हो गया। इसके साथ अटैच हम एक ओपन टेरेस दे रहे हैं आपका फ्रंट में। ये फ्रंट में आपका ओपन टेरेस हो गया। फिर हम एक और बेडरूम दे रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें भी आपका वार्डरोब बना हुआ बेडरूम है। इसका वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस है। फिर हम सेकेंड फ्लोर पे आप मतलब 5 BHK है तो हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर दे रहे हैं। तो सेकेंड फ्लोर पे फिर आपका 2 बेडरूम है। एक बेडरूम आपका ये हो गया। इसके साथ भी हम अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। फिर हम आपको सेकंड फ्लोर पे एक मास्टर बेडरूम दे रहे हैं जो काफ़ी स्पेसियस है साइज़ में। इसमें हम टीवी कैबिनेट भी दे रहे हैं। 5 BHK में हम 3 टीवी कैबिनेट दे रहे हैं। एक तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका लिविंग एरिया में, एक फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम में और एक सेकंड फ्लोर के आपका मास्टर बेडरूम है। ये अटैच आपका बालकनी है और इसमें भी हम आपका ड्रेसिंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। इधर फिर आपका टेरेस हो गया। इसमें हम क्या है ना 5 BHK में आपका लिफ्ट का भी प्लेस दे रहे हैं। ये आपका लिफ्ट का प्लेस है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक। की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। मैं करीब आज से 20-25 वर्ष पहले से यहाँ पूर्णिया आया करता था। मुझे याद है कि एक समय ये क्षेत्र कभी कालाजार का खानी हुआ करता था। लोग आते नहीं थे डर से कि कहीं कालाजार न हो जाए। नदी था, पानी गंदा था, काला पानी हुआ करता था। प्राय जो कोई भी यहाँ आते थे बीमार पड़ जाते थे। लेकिन आज से 25 वर्ष पहले और अभी का पूर्णिया में काफ़ी का ड्रास्टिक चेंज है और इस चेंज का सारा श्रेय हमारे संजीव बाबू हैं। और संजीव बाबू को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये आमूल परिवर्तन पूर्णिया में करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, मैं तो इतना तक कहता हूँ कि बिहार में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर तक में पूर्णिया संजीव बाबू के चलते एक जो पहचान बनाया है वे काफ़ी ही प्रशंसा के पात्र हैं। इसी साथ साथ आज स्कूल का जो विजिट किया, हमारे बच्चे भी यहाँ आए थे रामपुर छातापुर से
वहाँ के बंजर भूमि में जिस तरह से शिक्षा का एक बीजारोपण किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में संजीव बाबू का इस तरह से यदि स्टेप आगे बढ़ता गया तो पूर्णिया एक हस्ती बनेगी। समय आएगा कि लोग पूर्णिया को ही प्रेफर करेंगे और चाहना अब प्राय सभी में ऐसा होने लगा है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का यदि विकल्प हमें यहीं मिलता है तो हम यहाँ क्यों नहीं बच्चे को रखें, यहीं क्यों नहीं रहें। तो कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से मैं पूर्णिया में जो एक हैसियत अब देख रहा हूँ संजीव बाबू का, काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। इसके लिए वे काफ़ी प्रशंसा के पात्र हैं। और इससे पहले भी 7 दिसंबर की बात है, मैं यहाँ आया था। इनका कुल शायद यहाँ 9 सेक्टर्स हैं। 9 सेक्टर्स में हम विजिट किए थे और 9 सेक्टर में जो इनका योगदान हम देख रहे हैं, रियली मैं खुले दिल से इनका तारीफ़ करता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि आने वाले दिन में इसी तरह से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक हस्ती बने, बिहार का हस्ती बने और बिहार के साथ साथ देश के लेवल पर भी यदि अपनी पहचान बनाए तो हम सभी जिलावासी, खास करके सुपौल जिलावासी और सुपौल जिला के साथ साथ लालपुर, छातापुर का ये सपूत यदि एक परचम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर में लहराए तो हमें गौरव होगा। धन्यवाद। हम ई होम्स गए तो वहाँ ज़्यादा ही मज़ा आया। उसमें ऑटोमेटिक सब कुछ था। पहले तो हम लोग स्टेज पे चढ़े तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गया, फिर उससे हटे तो ऑफ हो गया, फिर वापस निकले दूसरे रूम गए, सब कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिक ही था। बहुत ही नया लगा हम लोग को ये सब, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। थैंक यू। गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के बारे में सुना करते थे और आज पनोरमा में आके हम देख लिए कैसा काम करता है। वो खुद ब खुद लाइट जलता है, खुद ब खुद मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तो काम करता है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से बहुत कुछ देखने को मिला यहाँ पनोरमा के ई होम्स में और हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा देख के। ओके, थैंक यू। हम लोग यहाँ पनोरमा में घूमने आए हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे एक मतलब ई होम्स भी है यहाँ पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पनोरमा ई होम्स में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ प्लेग्राउंड है, खेलने के बहुत सारे साधन हैं और यहाँ खेलने में अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूलने के लिए भी बहुत सुविधा है और हम लोग तो शीशों पे भी झूले, झूला भी झूले, बहुत सारे मस्ती किए, फुटबॉल खेले, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ घूम के। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए हम लोग। इतना ज़्यादा खुशी शायद लाइफ में पहली बार मिली होगी। थैंक यू।
बाय।